talks about tawakkul, which means putting trust in Allah. And Allah will provide him from sources he never could imagine. And whosoever puts his trust in Allah, then he will suffice him. Verily, Allah will accomplish his purpose. Indeed, Allah has set a measure for all things. If you don't believe this, then let me tell you a story, a true story. There was a woman who lived in the city of Mansura in Egypt. She was very poor, and her husband would often travel and leave her and her daughter alone. Once, her daughter became very ill, and she had fever like never before. The lady cried to Allah, "Ya Allah, I have no food, no money for her medication. Please help me. Ya Allah, you are Ar-Razik." She then prayed 2 rakah, attended to her daughter and fell asleep. As the hours past midnight, she heard a knock on the door. She trembled in fear. Was it my husband? She thought to herself. When the knock became louder, she got up, put on her hijab and asked softly, "Who is it?" "It's me, the doctor," came the reply. Doctor, Ya Allah." She opened the door. "Assalamu alaikum." "Walaikum assalam." "Where is the girl?" he asked. "She is in her room." He walks in, examines her thoroughly and prescribes some medication. Then he leaves, and as he reaches the door, he stops and asks for payment. The lady begins to cry. "Payment? I don't have any money." The doctor said, "What? You don't have any money? You called me in the middle of the night to attend your daughter and you say you don't have money?" She said, "Doctor, my daughter is very ill, but I didn't call you. I don't even have a phone." "What?" he said angrily. You didn't call me. Is this not the door number 218? "No," she said. "That's the next door number." She wept softly. The doctor stood in silence and asked her story. After hearing her plight, he goes out, comes back with some food and medicine. He also gives her some money and says, "This is Allah's help. He helps whom He wishes in such mysterious way." Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. The woman gives a cry and falls down in sujood. Dear parents, do you now believe? Surely Allah provides from sources one can never imagine. If you put your trust in Him, He suffices. So always put your trust in Him. Jazakallah. मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं जवान हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरे बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है, मेरा हर काम सबसे अहम और जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाथ हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मेरा हर काम सबसे अहम और जरूरी है, मेरे बगैर सबकी जिंदगी अधूरी है।
हेलो जज साहब, वासिक हमसा आपस में झगड़ रहे हैं, आप ही आके फैसला फरमा दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज साहब, ये वासिक हमसा है, ये आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं कि मैं बेहतर हूँ तो मैं बेहतर हूँ। इंसान को मेरी ज्यादा जरूरत है तो मेरी ज्यादा जरूरत है। आप भी फैसला फरमा दीजिए कि इनमें कौन ज्यादा बेहतर है। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या जात है जिंदगी में? तुम कैसे बेहतर हो? आपको अगर मैं नहीं होता तो लोग कुरान लेकर नहीं पढ़ सकते और ना रास्ता देख पाते और ना ही एक जगह से दूसरी जगह जा पाते। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूलि तरा अय्युनहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम्'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़। कि जब रसूल की तरफ नाज़िल करता कुरान को सुनता है अल्लाह तो उसका आंखों से हक पहचानने की वजह से आंसू टपकते हैं। तो मेरा जिक्र कुरान में भी है, इसलिए मैं अहम हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या जात है जिंदगी में? तुम कैसे बेहतर हो? मैं नाखूब इंसान का जिंदा रहना मेरे बिना मुमकिन नहीं है। मेरा काम अच्छा और बुरी चीजों को सूंघकर पहचानना है, इसलिए जिंदगी में मेरी बड़ी अहमियत है और मैं सबसे बेहतर हूँ। मेरे बारे में कुरान में फरमाया, अलन बिल अनफी, कि अगर तुम्हारी कोई नाक तोड़े तो तुम भी उसकी नाक तोड़ दो। ये मेरा मकाम है, इसलिए मैं बेहतर हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या जात है जिंदगी में? तुम कैसे बेहतर हो? मैं कान हूँ, अगर मैं नहीं होता तो लोग अच्छी बुरी बात सुन नहीं पाते, फिर उसमें फर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जिंदगी में हर मोड़ पर परेशानी होती। ना लोग अजान की आवाज सुनते, ना कुरान की किरात, इसलिए मैं बेहतर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा कुरिया कुरान फस्तमिऊ लह, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनो। अगर कान ना हो तो भला कोई कुरान कैसे सुन सकता है, इसलिए मैं अहम हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या जात है जिंदगी में? तुम कैसे बेहतर हो? मैं जवान हूँ, मैं खाने का मजाक करने और बात करने के काम आता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो लोग अपनी बात एक दूसरे से कैसे कर सकते, कोई स्पीकर स्पीच कैसे दे सकता, मेरे बिना कोई टीचर लेक्चर कैसे दे सकता, इसलिए मैं सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वला तक़ूलू लिमा तज़िबू अल्सिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम, कि तुम अपनी ज़बान से किसी को हराम या हलाल न कहो, क्योंकि ज़बान वो चीज है जो इंसान को सुरखरू बनाती है और दलील और रुसवा भी करती है, इसलिए मैं सबसे बेहतर हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या जात है जिंदगी में? तुम कैसे बेहतर हो? मैं हाथ हूँ, मैं एहसास हूँ, मेरे जरिए हर अच्छी और बुरी चीज को छू कर पहचान सकते हैं, इसलिए मैं सबसे बेहतर हूँ। और मेरी जरूरत जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत है, हल तुहिस्सु मिन्हुम मिन अहदिन औ तस्मऊ लहुम रिक्ज़ा, कि क्या तुम इनमें से किसी को भी महसूस कर सकते हो। अल्लाह ने इंसान के अंदर 5 ऐसी कुव्वतें अता फरमाई जो तमाम इंसान के लिए बड़ी अजीम नेमत है। इसके बगैर इंसान की जिंदगी अधूरी है। वो 5 कुव्वतें हैं, आँख, नाक, कान, जुबान और लफ्ज़ है। अगर इनमें से किसी एक भी नेमत से महरूम कर दिया जाए तो उसकी जिंदगी अजीरत बन जाती है और वो अपनी जिंदगी में दूसरों का मोहताज हो जाता है। अल्लाह ने इन 5 कुव्वतों की अहमियत एक साथ ही साथ में फरमाई, हल तुहिस्सु मिन्हुम मिन अहदिन औ तस्मऊ लहुम रिक्ज़ा, क्या तुम इनमें से किसी एक को महसूस कर सकते हो? इसलिए तुम अफजल हो, तुम सब खूबसूरत हो, तुम सब के बिना जिंदगी अधूरी है।